صلوات بر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيتنا ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم الله تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आगा बरकत भाई। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए सुकून झील को देता है जो कमल के लिए मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाई कलाम कि जिनके नाम खुदा ने बदल बदल के लिए फिर उसके बाद अली मुर्तज़ा का ज़िक्र चले कि जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए और कफ़न पे हाके शिफा से लिखा है नादे अली यही बहुत है मेरे नाम आए अमल के लिए और फ़कीर लोग हैं ज़िक्र अमीर करते हैं अली वली का वजीफ़ा कसीर करते हैं। मोमिनीन व मोमिनात आज जो शब जो है ये 25 शवाल की शब है। एक रवायत के मुताबिक आज की शब भी शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है और खुश नसीब है वो मरहूमा कि जिनके इसाले सवाल के लिए आज की ये शब स्वयं की मजलिस हुई है। अल्लाह ताला मरहूमा को करवट करवट जन्नत नसीब करे। और कबल इसके कि मैं अपने बरादरान को दावत दूँ उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि बस थोड़ा सा टाइम लें क्योंकि इतना हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनाब बिरादर मज़र ज़ैदी साहब सोज़ जो है वो एक मुकम्मल सोज़ जो है वो यहाँ पे अपना वो क्या कहते हैं वो यहाँ पे हमें सुनाएं। तो गुजारिश करूँगा सबसे पहले बिरादर असलम मेहदी साहब से कि वो चंद मिनट की तशरीफ़ लाएँ, उनके बाद जनाब राशिद ज़ैदी साहब और फिर इंशाअल्लाह बिरादर अज़र ज़ैदी भाई वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बारे दीगर सलवात। यूं बहन छूटे न भाई से ज़माने में कोई यूं बहन छूटे न भाई से ज़माने
में कोई खाक पर कोई रहा और कैद खाने में कोई, यूं बहन छूटे न भाई। आओ दो आंसू बहा लें ताजियों की छाँव में, आओ दो आंसू बहा लें ताजियों की छाँव में, फिर हुसैन ऐसा न आएगा ज़माने में कोई, यूं बहन छूटे न भाई से ज़माने में कोई। जिस तरह शब्बीर ने खालिक पढ़ी तेरी नमाज, जिस तरह शब्बीर ने खालिक पढ़ी तेरी नमाज, ऐसा सजदा क्या भला करता ज़माने में कोई, यूं बहन छूटे न भाई। सब्र की दुनिया बदल दी आके दस्ते शाह पर, सब्र की दुनिया बदल दी आके दस्ते शाह पर। तीर असगर कौन खाता मुस्कुराने में कोई, यूं बहन खोदते तलवार से शब्बीर क्यों नन्ही लहद, कुछ मदद करता अगर तुरबत बनाने में कोई, यूं बहन छूटे न भाई। जिस तरह अकबर को लाए तुम हुसैन इब्ने अली, जिस तरह अकबर को लाए तुम हुसैन इब्ने अली, यूं भी लाशे को उठाता है ज़माने में कोई, यूं बहन छूटे न भाई। बारह दिगर धन्यवाद। गुजारिश करूँगा जनाब राशिद ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सलाम या ज़ैनब, सलाम या ज़ैनब, यज़ीदियत को मिटाती हुई चली ज़ैनब, जहाँ गई गम शब्बीर ले गई ज़ैनब, यज़ीदियत को मिटाती हुई चली ज़ैनब, जहाँ गई
गम शबीर ले गई ज़ैनब। पितर के लहजे में खुतबात यूं दिए तुमने, पितर के लहजे में खुतबात यूं दिए तुमने। सितम से कुव्वत गुफ्तार छीन ली ज़ैनब। जहाँ गई गम शबीर ले गई ज़ैनब। ज़बां पे इनके न ताले लगा सका कोई, ज़बां पे इनके न ताले लगा सका कोई। असीर हो के भी आज़ाद ही रही ज़ैनब। जहाँ गई गम शबीर ले गई ज़ैनब। यज़ीद तेरी तबाही को कौन रोकेगा, यज़ीद तेरी तबाही को कौन रोकेगा। तेरे नसीब में खुद मौत लिख गई ज़ैनब। जहाँ गई गम शबीर ले गई ज़ैनब। बशक्ल कासिम अब्बास अकबरो असगर, बशक्ल कासिम अब्बास अकबरो असगर। तुम्हारी गोद में करबो बला पली ज़ैनब। जहाँ गई गम शबीर ले गई ज़ैनब। खुदा को दूसरा शबीर भेजना पड़ता, खुदा को दूसरा शबीर भेजना पड़ता। इसीलिए नहीं दुनिया में दूसरे ज़ैनब। जहाँ गई गम शबीर ले गई ज़ैनब। सलाम मीर तकल्लुम कबूल कर बीबी, सलाम राशिद ज़ैदी कबूल कर बीबी। हुसैनियत को मिली तुझसे जिंदगी ज़ैनब। जहाँ गई गम शबीर ले गई ज़ैनब। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
और मैं गुजारिश करूँगा जनाब बिरादरम सैयद अज़हर ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। बावाज़ बुलंद सलावत। वो सलाम पढ़िए हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले। वो सलाम पढ़िए हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, पर वहाँ से देखिए क्या मिले। ये तलब तो अपनी तरफ से है, पर वहाँ से देखिए क्या मिले। जो दरे हुसैन का हो मकी हो रसाई उसकी अली तलक। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। बाबा ज़ुबान सलावत। सलाम के चंद अशार। मुजरई शान ने कहा जब लाश पे आना ज़ैनब। मुजरई शान ने कहा जब लाश पे आना ज़ैनब। पर सकीना को मेरी साथ न लाना ज़ैनब। गर मुझे याद करे शाम को जिद भी करे। गर मुझे याद करे शाम को जिद भी करे। अपने सीने पे
सकीना को सुलाना ज़ैनब, अपने सीने पे सकीना को सुलाना ज़ैनब, शिमर छाती पे चढ़े ज़ब्ह करे जब मुझको, शिमर छाती पे चढ़े ज़ब्ह करे जब मुझको, सर खुले पीटती खेमे से नाना ज़ैनब, अश्किया छीन के ले जाए अगर सर से रिदा, अश्किया छीन के ले जाए अगर सर से रिदा, सर के बालों ही से मुँह अपना छुपाना ज़ैनब, लाश अब्बास से हरदम यही आती थी सदा, गर मिले पानी सकीना को पिलाना ज़ैनब, हिंद आवे जो तुम्हें देखने को जिंदा में, तुमको बाबा की कसम मुँह न दिखाना ज़ैनब, मुझ रही शैन का सलावत। मोमिनीन चंद इलानात समात फरमा लीजिए कि यहाँ पर 5 वक्त की नमाज जो है बाजमात अदा की जाती है और जुमे का वक्त 1:10 पे है। गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ लाइएगा। और 14 अगस्त बरोज़ इतवार विलादत जनाब इमाम अली रज़ा के सिलसिले में मोहम्मद वाले मोहम्मद यहाँ पर जश्न मुनाकिद हो रहा है। ये जश्न 7 बजे शुरू होगा और नमाज मगरिबैन से पहले ये जश्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह जश्न के फ़ौरन बाद नमाज मगरिबैन और उसके बाद इंशाअल्लाह न्याज का इंतज़ाम है। मोमिनीन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मरहुमा के लिए आज इसाले सवाब के लिए ये मजलिस बर्पा की जा रही है। उनकी रूह की मग़फ़िरत के लिए सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा। मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी,
मांगो दुआ हुसैन से खाली ना जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली ना जाएगी। और तू मजलिस हुसैन में आंसू बहा के देख, तू मजलिस हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। और इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा क़िबला काबा खुशतुल मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर सखावत हसन अली साहब से कि मुझसे से खिताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन मोमिनात, एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मगफूरा खालिदा रफ़ाकत मीर बिन्त मंजूर हुसैन डार को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास व क़राअतिल यासीन व ज़िक्र वल मजलिस व नज़र व तजम्मुअ बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदति निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन इला रूहिल मरहूमतिल मगफूरा खालिदा रफ़ाकत मीर बिन्त मंजूर हुसैन डार, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ुनूबहा वरहम अला अहवालिहा वहशुरहा मअल फ़ातिमा व ज़ुर्रियतिल फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन, सिय्यमा इमामना जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन अल्लज़ी लैलतु इस्तिशहादिही फ़ी मिस्ले हाज़िहिल लैला, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िही अब्क़िना अला दीनिही व फ़िक़्हिही
वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सलावत। शाह साहब आगे तशरीफ लाए। अंजुम शाह साहब, शाह जी थोड़ा आगे। रजा शाह साहब, बाबू शाह आगे आ जाए। बिस्मिल्लाह। हाजी साहब आप भी थोड़ा थोड़ा आगे। रजा शाह साहब बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह। काबिल क़दर सादातो मोमिनीन व मोमिनात, मरहुमा व मग़फ़ूरा खालिदा रफ़ाक़त मीर बिनते मंजूर हुसैन डार, जिनको हम कल वाशिंगटन मेमोरियल कब्रिस्तान लॉन्ग आइलैंड में दफना के आए। आज उनकी जो मजलिस से सोएम है, इसके लिए जो उन्वान सुखन मैंने मुंतखब किया है वो है हकीकत मौत। बुनियादी तौर पर कल की पहली मजलिस थी इस उन्वान की, और आज ये दूसरी मजलिस है इस उन्वान पर। कल मैंने आपकी खिदमत आलिया में हुजूर अकरम की अहादीस बयान की और मौला कायनात के कुछ इरशादात और कुछ आयात बयान की। आज मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा सबसे पहले कि मैं आज 12 इमामों के अक़वाल पहले पढ़ दूँ जो उन्होंने हकीकत मौत के बारे में फरमाए, बाद में कोई और चीज़ पढ़ूँ, ताकि ये एक कम्प्रीहेंसिव टॉपिक और बेनिफिशियल मटेरियल है, ये आज कन्वे हो जाए। और जब तक यूट्यूब पर, टेलीविज़न पर, ऑनलाइन सुना देखा जाता रहे, मरहूमा व मग़फ़ूरा के लिए सदक़ा जारिया शुमार होता रहे। बगैर किसी तमहीद के शुरू कर रहा हूँ कि मौला कायनात सिरुल्लाह फिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि या अबल हसन मल मौतो, मौला बताइए कि मौत क्या है। आपने इरशाद फरमाया कि मौत होवा अहदो सलासते उमूरिन, यही बात कल रुकी थी। मौत 3 किस्मों पर है, 3 में से एक का नाम मौत है। इम्मा बशारतुन, या तो ये बशारत है, खुद मौत बशारत है ले नईमिल अबद, अबदी नेमतों की, कि वो जो बुखार होता था, सर में दर्द होता था, तकलीफ होती थी, नींद नहीं आती थी, डर होता था कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, सारे डर खत्म हो गए, अबदी नींद सो गए नेमत इलाही की थपकियों में। इम्मा बशारतुम बिनईमिल अबद, औ, इसमें औ भी लिखा है, एक किताब में इम्मा भी लिखा है। जानबूझकर मैंने इसको रिपीट किया है कि अगर कोई कभी भी
न मालूम कब तक इंसान जिंदा है, कभी कोई इम्मा पढ़े तो ये न समझे कि इन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी थी। व इम्मा बशारतुन बे अजाबिल अबद, या ये मौत नजारत है, डराना है अबदी अजाब से, कि दुनिया में लोगों के हक मारने वालों, जबानों पे कंट्रोल न करने वालों, दुख तकलीफ देने वालों, कोई ऐसा दुख नहीं होगा जो मैं खुदा तुम्हें उसकी पादाश में इस कब्र में न दूं। या तो वो बशारत या ये नजारत। व इम्मा तहजीनुन, या ये डराना है, हुज़्न है, तकलीफ है, तखवीफ है, तहवील है, बस और कुछ नहीं। राइट लेफ्ट से सिर्फ और सिर्फ खौफ होगा, हुज़्न होगा, धमकी होगी, डराना होगा, अजियत होगी, तकलीफ होगी। ये तीन में से एक नाम है मौत का। हम क्योंकि पहले के मानने वाले हैं, उम्मीद रखते हैं उसी के सदके में पहला ही होगा। ये मौला कायनात सलावातुल्लाह व सलामुहु अलैह की नजर में हकीकत मौत। किसी ने फिर सवाल किया, थोड़ा और समझा दीजिए, रूह कैसे निकलती है? आपने फरमाया हमारे मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे सख्त गर्मी के मौसम में कोई शरबत पी रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कल माइल बारिद फिस्सफ, जैसा कि कोई सख्त गर्मी में यंतफ़अ बिह, ऐसा पानी पी रहा हो जो उसकी ख्वाहिश है। यानी मौत नाम है हमारे मोमिन की अपनी ख्वाहिश का, कि कोई कैसे मरना चाहता है। कोई करबला में चाहता है, मातम में चाहता है, अज़ा में, विलायत में नारे लगाते हुए। इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि सरकार आप बताएं कि मौत क्या है। फरमाते हैं आज़मो सुरूरिन यरदो अलल मोमिनीन इज़िन क़लबू मिन दारिल बला इलन नईमिल अबद। इससे बेहतर तो खुशी की कोई घड़ी नहीं हमारे मोमिन के लिए, इसलिए कि बलाओं की दुनिया को छोड़ रहा है, राहत अबदी में जा रहा। मुझसे किसी ने पूछा कि ये बताएं आपको मौत से खौफ नहीं होता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? मैंने कहा उसकी वजह यह है कि जिन्होंने आकर एग्जामिनर के तौर पर पर्चे पूछने हैं, सवाल पूछने हैं, उन सब के सब को अल्लाह ने बनाया है मिन नूरे वजहे अली इब्ने अबी तालिब। वो बने हैं अली के चेहरे के नूर से, और मेरे दिल में नूरे विलायत अली इब्ने अबी तालिब। मैं समझता हूं जिस तरह क्लास फेलो से नहीं डरता, मौला अली की विलायत वाला अली के चेहरे के बने हुए फरिश्तों से क्यों डरेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये राजा साहब लग गए थे डिप्टी डायरेक्टर, मेरे ऊपर तो रोब नहीं हुआ इनका, क्योंकि क्लास फेलो जो थे। तो एक अट्रैक्टिव पावर है, एक कॉमन वैल्यू है हमारे दरमियान और फरिश्तों के दरमियान, और उस कॉमन वैल्यू का नाम है अली इब्ने अबी तालिब।
इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह ने मसला ही हल कर दिया कि दुख जा रहे हैं, राहतें आ रही है, इस पे भी कोई रोएगा, दूसरे रोए, जाने वाला हंसता हुआ जाए। उसे ये इल्म हो कि वहां तो राहत ही राहत है। ये दूसरे इमाम की नजर में हकीकत मौत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सब्रनिल किराम फमल मौत इल्ला कंतरा। ऐ शरीफ ज़ादो, सब्र करो, डरो नहीं, तकलीफ में मत आओ। इमाम बता रहे हैं इसलिए कि मौत नहीं है मगर एक पुल। कभी पुल से भी मुसाफिर डरा है। अल्लाह अकबर। ताबुरूना ताबुरूना मिनल बास वज़र्राए इलल जिनानिल वासियते वन नईम दाइमे। ये कौन सा पुल है जिस पुल से तुम गुजरोगे छोड़कर दुखों तकलीफों, जर्रा और बास सख्तियों की वादियों को, और दाखिल हो जाओगे वुसातों वाली जन्नतों में, हमेशा वाली नेमतों। ये नारा लगाते जाए, मना कर दिया है, लगाते जाए। आप लगाते, आपने लगा नहीं, इनको मना कर, आपको मना कर दिया है तो उनकी बात मान ले। इसलिए कि जी बात मान लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह से जब पूछा कि आप फरमाइए सरकार, ये मौत क्या है? फरमाया लिल मोमिने का नज़्अ सियाबिन वासिखातिन व कुम्मलतिन व फक्के कुयूदिन व अगलालिन। तुम समझो कि मौत हमारे मोमिन के लिए है। क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैला कुचैला लिबास उतार के फेंक दिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये है मौत की हकीकत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की नजर में। इस पर तो ज़ैदी साहिबान को बोलना चाहिए। तो अब जरा मुलाजा फरमाते चलें। सरकार ये फरमाते हैं कि बस यूं समझो कि जैसे लिबास मैला हो जाए तो उसे उतार दिया जाता है। जो स्टेटस मैले लिबास के उतारने का है मोमिन के लिए, वही मौत का। यानी लिबास बला जा रहा है, लिबास आफियत आ रहा है, लिबास जहमत जा रहा है, लिबास रहमत आ रहा है। वो लिबास जा रहा है जिसमें पास फेल का स्टेटस ही नहीं पता था, लिबास बेहिश्त आ रहा है। लिबास बोद अनिल अमीरुल मोमिनीन जा रहा है, कुर्बे अली का लिबास कब्र में आ रहा है। नैपकिन लाओ। वफ़क्के क़ुयूदिन व अग़लालिन सक़ीला। कल की तकरीर अगर आपको याद हो
कि हमारे आइम्मा के चाहने वाले एक उन्वान पर जितने इमाम अवेलेबल होते सेम सवाल करते, डिफरेंट जवाब पाते। ये है तो इमाम हर इमाम के अल्फाज डिफरेंट है। ये अजीब जुमला है कि वफक के क़ुयूदिन व अगलालिन सकीला, मौत नाम है सारी शराइतों क़ुयूद को खत्म कर देने का और तकलीफों की सख्त जंजीरों को उतार के फेंक देने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जंजीरें गई तकलीफों की, दुखों की, पर आज भी एक साहब आए माशाल्लाह, हमारे मोमिनीन बड़े, खास तौर पे हमारे यहाँ वाले बड़े नेक हैं, जो कोई उनसे बात करे पूरी पहुंचाते। आज एक साहब आए थे, जुमा तो नहीं पढ़ सके बेचारे, फरमाने लगे मैंने कई सालों से जुमा नहीं पढ़ा हुजूर, मगर एक बात बताना है, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, कम अज कम हमारा दिमाग चाटा पौना घंटा। ये मौजूद थे, ये मंजूर साहब सामने जो बैठे ये भी इत्तेफाक से मौजूद थे। तो फिर उनकी तसल्ली तब हुई जब इन्होंने कहा हमारे हाथ भी इन्होंने ही खुलवाए हैं, ये सामने बैठे। फिर तसल्ली उनकी हो गई, ना मजलिस सुनेंगे ना जुमा पढ़ेंगे, इधर की बात इधर करने में दयानतदारी से पहुंचाते। जी हाँ, काश के वो इस पे तवज्जो करें जो मैं पढ़ रहा हूं, इस मैसेज पे, आले मोहम्मद के मैसेज पे तवज्जो करें। तो जंजीरें, ये जंजीरें ही है ना कि कब कोई क्या कह दे, हमें तो पता ही नहीं बेचारों को, पता नहीं किस माहौल में, अच्छे माहौल में आए, आगे से क्या तकलीफ हो। ये सारी जंजीरें कट जाएंगी जब फरिश्ता मौत आ जाएगा। एक तरफ से मलकुल मौत की थपकी, दूसरी तरफ से रहमत रब की थपकी, तीसरी तरफ से विलायत अली की थपकी, चौथी तरफ से अज़ादारी हुसैन की थपकी। ये इमाम चहारुम। अब इमाम पंजुम से पूछा, इमाम मोहम्मद बाकिर सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह, सरकार आप बताएं कि ये मौत क्या है। फरमाते हैं हाजा नौमुल्लज़ी, ये तो जो यातीकुम कुल्ला लैलतिन, ये नींद ही तो है जो हर रात तुम्हें आती है। इल्ला तवीलुन मुद्दत हो, फर्क ये है इसकी मुद्दत तवील है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मसला ही हल हो गया कि मौत जिससे बड़ा खौफ था, सकरातुल मौत खाए जा रहे थे, कब्ज़े रूह कैसे होगी, कैसे जाएगी, कैसे आएगी, क्या होगा। हजरत ने फरमा दिया नींद कैसे आती है, कैसे रूह निकलती है, डेली बेसिस पे कैसे आ जाती है। जो ताकत यहां पलटा सकती है वही वहां पलटाएगी। लीजिए, आप सोते हैं ना, कितने कॉन्फिडेंस से सोते हैं। कभी आप ये कह के सोए हैं कि उधार ले लो, पता नहीं कल उठूंगे ना उठूं। बस जिस तरह ये कल का यकीन है वैसे फर्दा क़यामत का यकीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये इमाम मोहम्मद बाकिर सलामुल्लाह अलैह की नजर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पूछा गया कि सरकार आप बताएं कि मौत क्या है। बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, और आज शब उनकी शबे शहादत भी है। बड़ा अजीब जवाब दिया। और याद रखना, ये इमाम देख लीजिए, आदम से लेकर
खातम तक जितनी कॉमन सेंस की शरीयतें गुजरी या जितनी कंपाइल्ड ऑर्गेनाइज्ड शरीयतें गुजरी, वो सारी की सारी अपनी जगह शरीयत के प्रैक्टिकली मैसेज का नाम होता है फिक्र। फिक्र कहते हैं जब शरीयत प्रैक्टिस में आए उसे कहते हैं फिक्र। प्रैक्टिस में तो 5 शरीयतें चली है, किसी नबी से फिक्र की निस्बत नहीं आई। फिक्र की निस्बत आई है तो जाफर सादिक से। वो इमाम इंतहाई मुख्तसर जवाब देते हैं, मुख्तसर तरीन जवाब 2 इमामों के, इनका और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। इनके सबसे मुख्तसर जवाब हैं, दोनों के सुन ले फिर मैं बाकी भी बताता हूं। इमाम हसन अस्करी ने तो यह कहा जब किसी ने पूछा कि मौत क्या है, फरमाया तस्दीक मा ला यकून, ये उस तसव्वुर की तस्दीक है जिस पर तुम्हें उम्र भर यकीन नहीं आया, एक लम्हे में यकीन आ जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये इमाम हसन अस्करी सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह का जुमला, और इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह का जुमला फरमाते लिल मोमिन कतीब, मोमिन के लिए मौत खुशबू है। इसमें क्या छुपा हुआ है? बंदों की बदबूएं खत्म हो गई, खुदा की खुशबू शुरू हो गई। ये है मौत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया का ताफुन जाता रहा, आखिरत की स्मेल दामनगीर हो गई। तभी तो अब शावर की जरूरत नहीं, उधर की स्मेल है, अब शावर क्या लेना, एक ही दफा दिला दिया है वही काफी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तभी तो हदीस शरीफ में आया है कि मोमिन जब उठेगा उसके पास से खुशबू आएगी काफूर की। समझे हैं या नहीं? काफूर की खुशबू आएगी। अहले महशर पूछेंगे ये खुशबू काफूर की क्यों है, तो जवाब फरिश्ते देंगे इसने सजदे के 7 मकामात में अपने रिश्तेदारों के जरिए हुनूत करा लिया था। अब उनको खुशबू कहां से आएगी जिनके मजहब में हुनूत है ही नहीं। तो आप मुलाजा फरमा रहे हैं ये इमाम की नजर में खुशबू है, ये तीब है, ये तीब है। इसी तीब से होता है तय्यब, इसी तय्यब से है मदीना तय्यबा जो अब बन गया है तैबा। है ये तय्यबा, ये पाकिस्तानियों ने तैबा बना दिया। अरबी में तैबा का कोई लफ्ज नहीं है, पाकिस्तानियों ने इसको बिगाड़ के तैबा कर दिया है वही कि वो खुशबू, तवज्जो रहे इस पे खास तवज्जो रहे, मौत नाम है खुशबू का। कौन सी खुशबू? वो मदीना तैयबा वाली खुशबू, वो खाके शिफा वाली खुशबू। अब समझ में आई बात कि काफूर के साथ हम खाके शिफा क्यों रखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए इसलिए कि रिएक्शन होने हैं
दो तरफ से, तवज्जो रहे, एक बॉडी से रिएक्शन होना है। क्यों? इसलिए कि जब तक रूह थी कबर था, अब कबर गया है, अब उसको कवर करेगा हुनूत। और एक डैमेज होता है मिट्टी से, उसे कवर करेगी खाके शिफा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये एक साहब थे मदरसतुल वाइज़ीन के प्रिंसिपल मौलाना वसी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक बस पे एक बहुत तवील नजराना अकीदत पेश किया था। तो उनका एक शेर मुझे याद रह गया, दोस्तों ने रख दिया था सुर्रा जो जेरे कफन, एक चुटकी खाक की इस दर्जा काम आई के बस। तो आपने ये मुलाजा फरमा लिया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की नजर में मौत नाम है खुशबू का। याद रखिए, इमाम सादिक की शब शहादत है। मरहूमा व मगफूरा को ये सवाब चला जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो इरशादात फरमाए हैं, उनके एक शागिर्द को 30,000 हदीस पैगंबर याद थी। उनके एक शागिर्द ने 180 किताब लिखी। जो ये कहते थे इनके जद लिखना न जानते थे, उन्होंने अपने शागिर्दों से 180 लिखवा ली। और जो कहते थे इनके जद भूल जाते थे, उन्होंने अपने खाकी शागिर्दों से 30,000 अहादीस पैगंबर याद करा ली। ये इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह का कमाल। इमाम मूसा काजिम सलावतुल्लाह व सलामु अलैह से पूछा गया कि सरकार आप बताएं मौत क्या है। तो आपने फरमाया, हुवल मुसफ़्फ़ातु लिल मुमिने ले युसफ़्फ़ियहु मिन ज़ुनूबे। ये मोमिन के लिए वो प्योरीफायर है। अब इसे समझना जरा, ये जो छाननी आप कहते हैं ना, छाननी, ये छाननी है मोमिन के लिए जो गुनाहों को छान देती है। अल्लाह अकबर। ये छाननी है, गुनाह अलग कर देती है। मौत के बाद मोमिन के नाम आमाल में गुनाह रहता ही नहीं। अब वो हदीस शरीफ जो रोजे के साथ आपने सुनी थी और मैंने पढ़ी थी, किसी को समझ आई, किसी को नहीं आई। या अबल हसन या अली अखस्तु अहदन मिनल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, मैं मोहम्मद ने अल्लाह से वादा लिया है ले शियाते का। आपके शिया के बारे में मैंने वादा लिया है, अन यक़बला तौबतहु फ़अजाबनी,
मैंने कहा मेरे भाई अली के हर शिया की तौबा कबूल करना, उसे आगोश मर्ग में न ले जाना जब तक वो तौबा की किश्ती पे सवार ना हो। अल्लाह ने मुझे जवाब दिया, ऐ मोहम्मद मैंने तुम्हारे इस इस्तिगासे पे, इस दुआ पे लब्बैक तो कह दी, मगर लाल गैर शियत ही ये एजाज सिर्फ अली के शियों को है, गैर शिया को ये एजाज नहीं मिलेगा। लीजिए मुसफ़्फ़ा अली अली मन कुंतो मौला अली अली, काबा का गौहर अली अली, ज़हरा का शौहर अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, सब मिल के बोलो अली अली, मुनकिर की तबाही अली अली, तेरी कब्र के बाहर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली, नारे जब इमाम अली रज़ा सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह से पूछा गया मौत क्या है, फरमाया इन्नमा लकीता मा युनज़िरुका, उसे मिला है मौत के वक्त, तू उसे मिल रहा है जिससे हमेशा डरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह या अली या वयुगय्यिरु बाज़ अहवाले, मौत कुछ नहीं, तवज्जो रहे, तनक़िलूना, एक जुमला और रह गया था वो भी सुन ले, तनक़िलूना मिन मकानिन इला मकान। हदीस के जुमले हैं, मोमिनो घबराना नहीं, तुम ट्रांसफर नहीं कराते हो अपना यहां से वहां, ये ट्रांसफर ही तो है। बुरी जगह से अच्छी जगह जा रहे हो फिर भी डर रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लीजिए, ये बुरी जगह थी, इससे अच्छी जगह चले गए। इंतकाल नहीं कहते, इंतकाल हो गया, मरहुमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब क्या है, यह ट्रांसफर ही तो हुआ, यहां से वहां। यहां हर वक्त जरूरत ही जरूरत थी, अब जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कभी सर्दी से घबरा रहे थे, कभी गर्मी से, अब वो कुदरत संभाले, उसने अपनी जिम्मेदारी ले ली, अब वो संभालेगा। ये दरअसल जिसे हम सब कुछ समझते हैं, मौला अली ने एक और जुमला रखा है, फरमाते हैं दारुल ममर, ये हयात जिसे सब कुछ समझ रहे हो, ये तो जिस्र है, ये पुल है, ये ब्रिज है, ये ट्रांजिट लाउंज है, ये टनल है। कभी ट्रांजिट लाउंज में हमेशा के लिए सोए हो? इतना सो के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ये जिसे हम सब कुछ समझ रहे हैं, तभी तो मौला से पूछा किसी ने कि आपने अपना महल नहीं खरीदा। ये परसू साहब आए थे जिन्होंने कहा मैं खरबपति हूं, कभी $5 नहीं दिए, है खरबपति। यहां परसों कसम खाई यहां पर कि कसम है इमाम हुसैन की मैं खरबपति हूं। मैंने कहा मैं भी कसम खाता हूं, मैंने आपको डोनेशन देते नहीं देखा। बड़े बड़े खरबपति बड़े हैं माशाल्लाह, हैं क्या खरबपति हैं भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी हाँ, ये दुनिया जिसे सब कुछ समझ रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये गुजरगा। आपने कभी वेराजोना ब्रिज पे क्याम किया? पुलिस वाले रुकने नहीं देते। अब समझ में आई बात कि ये फरिश्ते क्यों तंग करते हैं कि जल्दी करो नमाज में, कुरान में, नेकी में। पुलिस वाले रुकने नहीं देते ब्रिज पे। शाह जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये रुकने नहीं देते। जी हाँ,
फासिक फाजिर पुलिस वाले के सामने तो आप सारे मुत्तकी हैं, उस आदिल के आदिल फरिश्तों के सामने सारे सर उठा रहे। इतना तो समझ लें जितना पुलिस से डरते हैं उतना इन दो से डरने लग जाएं जो रकीबो अतीद है, जिनके कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं आ सकता। तो तकरीर तमाम हो रही है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद अब इमाम मोहम्मद तकी जवाद सलामुल्लाह अलैह। इमाम का अजब जुमला, फमा बालो हाउलाइल मुस्लिमीन, क्या हो गया है इन मुसलमानों को, ये नहीं कहा मोमिनों को। इमाम कह रहे हैं इन मुसलमानों को क्या हो गए, यकरहून अल मौता, ये मौत से कराहत कर रहे हैं। लिअन्नहुम जाहिलू, इसलिए कि जाहिल हैं। अल्लाह अकबर। वलो आरिफू यकूनुल औलिया, अगर ये मौत ही को जान लेते तो वली बन जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहना, शाबाश, शुक्रिया शाह जी। अगर ये जान लेते कि मौत क्या है तो ये औलिया बन जाते। अब समझ में आई बात। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब वली बन गए तो मौत से डर क्या है। अब समझ में आई बात कि वो बंदा जो नबी के साथ बैठकर कवर जगह पे डर रहा था वो वली नहीं था। वली होता तो न डरता। मौला सलामत, मौला बादशाह, शुक्रिया। इमाम फरमा रहे हैं मौत नाम है अन्नल आखिरत खैरुम मिनद दुनिया। मौत नाम है इस स्केल का कि मौत के पेशानी के झूमर से पढ़ लो कि आखिरत दुनिया से अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ बार बार मुर्दों को दफनाने वालों, अपने कंधों पे उठाने वालों, अभी नहीं समझे हो कि आखिरत अच्छी है दुनिया बुरी है। अल्लाह अकबर। ये इमाम मोहम्मद तकी जवाद और इमाम अली नकी सलावतुल्लाह व सलामुहु अलैह। जो इमाम ने जुमला कहा, सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं अपने आइम्मा की फसाहत व बलागत। देखिए, जुमले से जुमला नहीं मिल रहा, लफ्ज से लफ्ज नहीं मिल रहा, हदफ सबका एक है। इसे कहते हैं इमामत। जहां बलागत लौंडी बन के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए उन्हीं को तो अहले बैत कहते हैं। यह मिलाएं जरा अल्फाज को। किसी दुनिया के इमाम को कहें एक जुमला कह के बताए, इमामों की नकल मार के ही अरबी बना के दिखाए। नकल मार ले, एक जुमला बना के दिखाए। इमाम का जुमला बड़ा अजीब है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जुमला बड़ा ही अजीब, और वो ये है, इमाम फरमाते हैं मा बालुस्सबी वल मजनून। ये क्या हो गया है बच्चों को और पागलों को। ये बच्चों और पागलों को क्या हो गया है कि यमतने, बच्चा और पागल रोक देता है मिनत दवा, कि दवा न पिलाओ। मौत तो दवा है जिससे इलाज होगा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो इस दवा को समझ नहीं रहा, या बच्चा है या मजनून है। कोई समझे है या नहीं? ये क्या हो गया? यमतानिया, ये रोक देता है बच्चा कि दवा ना पिलाना, हालांकि ये दवा उसके लिए सूदमंद है। अल मुतनक्की बेही, हालांकि ये दवा उसके बदन को साफ करती है भी नकी और लफ्ज भी मुतनक्की। जरा समझे आप क्या कहना पसंद? जिस तरह दवा नकावत बख्शती है, तहारत बख्शती है, इसी तरह इमाम अली नकी नस्लों की नजाबत बख्शते हैं। वो बख्शिश दवा की शिफाए बदन के लिए, ये बख्शिश इमाम की नस्लों की तहारत के लिए। वन्नाफी लिलअलम मिन्हो, ये दवाई जिसे वो कड़वा समझ रहा है, बच्चा कड़वी समझ रहा है, या इस शरबत को कड़वा समझ रहा है, पागल मजनून ये नहीं समझता। इसी कड़वाहट से उसके बदन को सलामती मिलेगी, उसके बदन से बीमारियां दूर होंगी, इसी से उसे नकावत हो नजाबत मिलेगी, और इसी से उसके सारे अलम, रंज, दुख, गम खत्म हो जाएंगे। थोड़ी देर की कड़वाहट है, फिर आराम ही आराम है। मौत नाम है थोड़ी देर की कड़वाहट का, जिससे अबदी आराम मिल जाता है। ये अब तक मैंने आपकी खिदमत आलिया में अल्हम्दुलिल्लाह 11 इमामों की जबान से हकीकत मौत बयान कर दी। अब अगर 12वें का जुमला पढ़ूं तो कम से कम घंटा और चाहिए, लिहाजा वो आ जाएगा फिर कभी हकीकत मौत नंबर 3 में। आज की तकरीर यहां पे खत्म हो रही है कि हमने इन 11 मासूमों के अकवाल से आज मारिफत मौत हासिल कर ली कि मौत से डरना नहीं है, बल्कि मौत के लिए तैयार होना है। यानी बीमारी अगर लग गई है तो डरो नहीं, मरो नहीं, बल्कि उसका इलाज करो। क्या कहना हमारे आइम्मा का, सिर्फ बीमारियां नहीं बताई, इलाज भी बताया, एहतियात भी बताई। सुभान अल्लाह। और अब इंशाअल्लाह आइंदा जो तकरीर आएगी उसमें फिर इलाज भी बताएंगे, सिम्टम्स भी बताएंगे, क्योर भी बताएंगे, और बताएंगे कि हकीकत मौत क्या है कि जिसके सबब इंसान मौत की तमन्ना करता है। क्योंकि सूरह जुमा कहती है कि यहूदी मौत की तमन्ना नहीं करते। हम में और यहूदियों में फर्क क्या है कि वो भी डरे और हम भी डरे। ये दलील है इस बात की, आइम्मा अतहार के रास्ते पे चले तो डर और खौफ खत्म हो जाएंगे। बस तकरीर यहां पर तमाम हो गई। एक जुमले पर कल की तकरीर से मैं मुत्तसिल हो जाऊं। मैंने अर्ज किया था कि मरने के बाद भी कुछ लोग जिंदा रहते हैं, या सदका जारिया के जरिए कुछ रनिंग अकाउंट खोल जाओ, कोई नेकी कर जाओ, कुरान छपवा जाओ, कोई जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का मरकज कायम कर जाओ, कोई मस्जिद बना के जाओ, कोई मदरसा बना के जाओ, कोई यतीम खाना बना के जाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो अच्छी रविश ही छोड़ के जाओ कि फलां साहब जब तक थे, जब किसी मासूम का नाम आता था बुलंद आवाज से दुरूद भेजते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। बस तकरीर तमाम हुई, बल्कि एक जुमला सारे मासूमीन का सुन ले। 14 ने कहा है,
आइंदा मैं बीबी पाक का भी बताऊंगा कि बीबी ने क्या फरमाया। 14 ने एक बात फरमाई है और वो फरमाते हैं कुछ लोग वो हैं कि जिनके मरने के बाद कोई उन्हें याद करे या न करे, हम 14 उन्हें याद करते हैं जिन्होंने उम्र भर हमें याद रखा, हम उम्र भर उन्हें याद करते रहे। बस अरमान तो इसी बात का है कि बीबी पाक आपको याद करती है, क्योंकि आप बीबी पाक को याद करते। रसूल की अकलौती बेटी। मैं जब अमेरिका आया था तो मुझे बताया था दोस्तों ने मेरे जो साबिक से यहां थे कि कनेडी की बेटी आई थी टीवी पर, तो सारी अमेरिकन कौम एहतराम में खड़ी हो गई थी। इतना ही एहतराम कर लेते जितना कनेडी की बेटी का अमेरिकन कौम ने किया था। वो 3.5 घंटे ऐसे खड़ी रही मिंबर रसूल के सामने जैसे कोई उसे जानता ही ना था। अल्लाह अकबर, क्या दुख है, क्या रंज है हसनैन की मां के। मैंने तो यहां तक देखा है कि जब वसीयतें करने लगी थी बीबी तो फरमाती थी या अबल हसन गस्सिलनी व कफिन्नी व दफिन्नी, मौला मुझे अपने पाक हाथों से कपड़ों के अंदर गुस्ल दीजिएगा, क्योंकि शौहर महरम राज होता है। मैं नहीं चाहती कि अस्मा बिनते उमैस को पता चले कहां कहां मेरे जख्म है। अल्लाह अकबर, मैं फिजा को नहीं बताना चाहती, मेरी बेटियों की कहीं नजर ना पड़ जाए उन जख्मों पे। और मुझे अपने दस्ते मुबारक से कफन पहनाइएगा। कपड़ों के ऊपर मौला ने कफन पहनाया, लन्नहा कानत ताहिरतन मुताहरा, और मुझे अपने दस्ते मुबारक से लहद में उतारिएगा। मगर आयतुल्लाह उज़्मा शेख जाफर शोस्त्री ने लिखा कि ईफाए अहद करने वाला इमाम एक वसीयत पे अमल न कर सका। मा क़दरा अलीयुन अन युदफ़िना जसदा फातिमा, अली रसूलजादी का बदन उठा के कब्र में न रख सके। फातिह बदरो उहदो खंदको खैबरो हुनैन की हिम्मत जवाब दे गई कि कैसे उठाऊं। यहां एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह नाराज ना होना, नाराज ना होना। अमानत का कानून यह है कि जैसी दी जाए वैसे पलटा ही जाए। या रसूल अल्लाह, जब आपने फातिमा दी थी इसका हाथ टूटा हुआ न था, इसका पहलू शिकस्ता न था। माशाअल्लाह, बहुत गिरिया फरमा चुके, आप तवील जहमत नहीं देनी। आज तो उस इमाम की शब शहादत है ना, जिस इमाम की यह ख्वाहिश थी कि मेरे जद की मजलिस में यूं रोया करो जिस तरह मेरी दादी फातिमा रोती। मौला आपकी दादी कैसे रोती है कि जन्नत में अपना हाथ सीने पे मार के कहती है, आए मेरे गरीब, आए मेरे हुसैन, जज़ाकुमुल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मैंने तो यहां तक रिवायतों में देखा है जब वक्त आखिर आया ना इमाम सादिक का, तो इमाम काजिम से कहते हैं, बेटा मेरा रुख किबला रुख करने से पहले करबला कर दे। मैं जरा गरीब ज़हरा को पुरसा दे दूं, अकबर का, असगर का, अबुल फजल का, भाइयों का, मेहमानों का, मेजबानों का, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस तकरीर तमाम, एक का एक जुमला और सुन लीजिए। मजलिस खत्म करना चाहता हूं उस बीबी के जिक्र पर जो महरूमतुल मुसर्रत है। कायनात में आदम व आलम की तारीख में कोई बीबी उम्मुल मसाइब नहीं गुजरी, कोई बीबी महरूमतुल मुसर्रत नहीं गुजरी।
किसी बीबी ने इतने गम नहीं खाए, इतने दाग नहीं देखे जितने ज़ैनब ने देखे। अल्लाह अकबर। बस जुमला आ गया है सामने। मैं इस जुमले को पहले भी एक दफ़ा बयान कर चुका हूँ, आज मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे आगा हुसैन थे, किबला आगा हुसैन जाकिर थे भक्कर के। मैं उस वक्त बच्चा था जब वो ज़ियारतों से पलटे थे, तो जो मुहाजिरीन के महल्ले में इमाम बारगाह है वहाँ किबला बैठे थे और उन्होंने तस्सुरात बताए बीबी ज़ैनब के रोज़े के। बताते हुए कहते हैं कि एक रोज़ मैंने खुदाम से कहा कि आज मुझे शब भर बीबी ज़ैनब के रोज़े में लाकअप कर दो, लॉक करके चले जाओ, सुबह को खोल देना ताला। जब उन्होंने लॉक कर दिया और मैं तहज्जुद की नमाज से फारिग हुआ, रात ढल चुकी थी, मैंने बीबी ज़ैनब के रोज़े की जाली में यूं हाथ रखा और मैंने एक जुमला कहा, बीबी मैं शहनशाह मसाइब हूँ, मैंने आपके बड़े मसाइब पढ़े हैं। दुनिया कहती है मेरी मजलिस में लोग बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि जो मसाइब मैं पढ़ता हूँ वो सही है। किबला आगा हुसैन ने कहा, अंदर से बीबी की आवाज़ आई, आगा हुसैन ज़ैनब के मसाइब या ज़ैनब जानती है या खुदा जानता। या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़ अली, या फातिरो बेहक़ फातिमा, या मुहसिनो बेहक़ हसन, या कदीम अल इहसान बेहक़ हुसैन, सियमा ज़ुर्रियत हुसैन, वला सियमा इमामिना सादिक व इमाम ज़मानिना हाज़ा, तक़ब्बल हाज़ल मजलिस व ज़िक्र व बस्सवाबहु व बस्सवाबल मजलिस व ज़िक्र वल फ़वातिह वल इख़लास वल यासीन वन नज़र व तजम्मुह व ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद व ज़िक्र मसाइब इला रूहिल मरहूमतिल मग़फ़ूरा खालिदा रफ़ाक़त मीर बिन्त मंजूर हुसैन डार। अल्लाह मग़फ़िर ज़ुनूबहा वरहम अला अहवालिहा वहशुरहा मान नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन वख़्लुफ़ अला अहलिहा फ़िल गाबिरीन वरहमहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।